think yeah, that's quite loud. It would be nice if we could play the video first, and then the conversation will go on from there. Right? My dream is to be a scientist, and I want to be a scientist because I see that Japan, USA and China, they are advanced. I want to make Pakistan advanced. I'm in 6th grade and my dream is to be the future president of Pakistan. I want to be a psychologist, and if you go to every home in Liari, you will see something worry in their mind, in their eyes, the tears. I want to be the one to feel their pain and to bring a change in Liari. I want to be a scientist, and once I discovered that Massachusetts Institute of Technology is the best engineering university, it's in Boston. It is my dream that I want to go there, and at any cost, I have to reach there and study from over there. I want to change my community by education, by compassion, by the things that people need in Liari. मुझे लगता है कि जब मैं 6 साल की थी तब फिल्म स्टार्ट हुआ, उसके बाद बच्चों को स्कूल से छूटते हुए देखा कि तालीम ना होने से बच्चों पे कितना नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि स्कूल एक खुशी की जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चे जाएं तो उनके लिए एक डिज्नीलैंड है। यहाँ आके फिर 1 साल मैंने सिर्फ रिसर्च की लियारी पर। मैं रोज़ के गलियों में बैठ जाती थी लोगों से बातचीत करने के लिए। In 2007, she came in Liari. She started with us first batch. She changed our life. Now Sabina auntie want to change others' life also. When Kiran took my admission, साथ ही साथ उन्होंने मेरी अम्मी का भी admission लिया. So at the morning they started teaching us, and at the afternoon the mothers came and they learned what we learned at the morning. Because when the child goes home, so who will teach him? बिगर एजेंडा यही था कि माँ को पढ़ाया जाए। अगर मैं एक बच्चे को पढ़ा दूँ तो वो एक बच्चा पढ़ेगा, अगर माँ को पढ़ा दिया तो उसके आने वाले बाकी सारे बच्चे पढ़ेंगे। अपना काम कुछ हमें दे दें, हम कुछ कर लेंगे आपके लिए, तो वो मुझे क्या कर सकते हैं। हमने अपनी एक सोसाइटी बनाई है, केयर ड्रीम सोसाइटी। तो हम सीड्स पेंटिंग करेंगे, हम प्लांटिंग करेंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो बहुत अच्छी आइडिया। KGS is the successor of Kiran Foundation. So we need to follow the path that Kiran is moving on. The ideology is coming from Kiran because Kiran taught the first batch. We have 20 kids in the first batch, so each one of them teaching two. How many children will get inspired? I became a part of KGS and start helping my society. He's my cousin. He always come to me and ask, मैं कब इंग्लिश सीखूंगा? मुझे कोई सिखाता ही नहीं इंग्लिश। मैंने कहा अच्छा, आपको आपके स्कूल में नहीं सिखाते इंग्लिश? नहीं, मुझे बस लिखवाते हैं। Then I said, okay, आप भी आ जाओ मेरे साथ हिंदी में, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। The basic thing which is needed these days is education, right? So Sabina auntie want us to give the education to Liari people, to Karachi people and to Pakistan. अक्सा के पास भी मेरी बेटी आई है रिदा, तो ये अच्छा है कि इसके पास आ रही, क्योंकि यहाँ जो है हम सिक्योर समझते हैं। When I came to know that my brother didn't listen and speak, so I started to go with my mother to learn the sign language. Nobody understands his language. Then I thought of teaching other children that how this sign language is. अगर आपके 2 साल के बच्चे आप उनको आए तो स्कूल में डालें, लेकिन आपको अपने बच्चे के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। I went to Happy Home. There in 3rd grade, I lost my mother. Kiran is like a family, and whenever like anybody a part of Kiran or a family is suffering from like family issues, so Kiran is there to support people. Like Melrose mother Nafisa auntie, she passed away. नफीसा फोरम के अंदर माएँ आती हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। फिर नाम हमने नफीसा फोरम इसलिए रखा कि वो एक तरह से वो हमारी माशाल्लाह से बहुत पंक्चुअल मदर थी। Nafisa Forum is a one way to refresh the mother's mind, to be many dreams about their child and their selves. मैं वैन ड्राइवर हूँ, IP की भी मेंबर हूँ। हम सबीना के साथ असल में मेरी ख्वाहिश थी कि गाड़ी चलाना सीखूं, तो मैं अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप करूँ। सीखा, प्रैक्टिस ली, फिर करते करते मैंने अपने बेटे का पिक एंड ड्रॉप शुरू किया।
फिर मैंने कन्वेंस शुरू किया। जहाँ मैं टूटने की करती थी वहाँ मैं मैम सबीना से चंद बातें करती थी और मेरे अंदर हिम्मत आ जाती थी कि टूटना नहीं। शायद मैम सबीना को अल्लाह ने मेरे लिए भेजा था कि अगर ये ना आती तो फिर मेरा क्या होता, क्योंकि मुझे हर तरीके से सपोर्ट उन्होंने किया। जितनी मुश्किलात वक्त मैंने गुजार दिए और अभी जो कर रही हूँ, ये उनकी दी हुई ताकत है मेरे अंदर। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, मुझे उनका बैक नहीं होता मेरे पास, तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे साथ किसी ने भी नहीं दी। सिर्फ उनके लफ्ज थे मेरे साथ और मुझे चलना था। 2007 में मेरी शादी हुई थी और 4 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरा ससुराल जो है वो बदीन में था। जब मैं यहाँ वापस आई तो हर कोई बेचारा बनाने के चक्कर में था कि मैं बेचारी बन के रहूँ, और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कि मैं सोच रही थी मैं स्कूटर चलाना सीखूं। फिर कहा कि यूं करो तुम जो हो ना वो गाड़ी चलाना सीख लो। फिर 2-3 और मदर्स ने भी कहा कि भाई अगर आप उसी रास्ते पे जा रही हैं तो फिर कारपूलिंग क्यों नहीं करती हैं, आप हमारे बच्चों को भी लेती भी जाए। उसके साथ साथ मुझे 2 और बच्चे भी मिले और मैं इसी तरह बच्चों को छोड़ की करती हूँ। तो बयान डी का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पर। पैसे तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो वो हमारे पास बैठ के हमें नर्चर करती है ना, इट इज टोटली डिफरेंट। We are here in DCTO's biology lab, and it was made by Kiran Foundation to spark the productive, interactive with the people, and test the idea for the model school. We adopted the DCTO government school in Liari. It's a huge campus, and Kiran Foundation will grow if each and everyone will support. Now we are in DCTO's IT center, and this is very important because children come and do their projects. In this age and time, we cannot deny this technology, and education and technology, they both go hand in hand. This is DCTO campus indoor sports room. We play table tennis, ludo, chess, and carom over here. Playing is as important as education, and Albert Einstein also said that playing is a form of research. Now we are at DCTO campus and this is art studio. Art is important because we express our emotions through art. 10 सालों में जितना हमने काम किया है वो यकायक अब हमें लग रहा है कि हम स्केल अप हो सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हमने करी है इस काम की कि वी फील कॉन्फिडेंट। अब ये स्केल अप जो होगा, जिस हिसाब से हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं बेनिफिशरी के बहुत जल्दी स्पीड से, पहले हम 20-20 बच्चे हर साल लेते थे, अब यकायक एक ही साल के अंदर 400 बच्चे, 400 पेरेंट्स, बहुत बड़ा स्केल अप है। तो नेचुरली इसके लिए फंड्स भी एकदम इतने ही स्पीड से और इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर फंड्स आने रुकेंगे तो हमारा काम रुक जाता है। लेकिन जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है ना, जहाँ मैं सोचती हूँ कि ये फंड्स कैसे आएंगे, हमने इतना बड़ा स्केल अप कर लिया, तो मुझे वो हमारी एक मदर है ना, उसकी बात याद आती है, जिसने एक दफ़ा आके मुझसे कहा था कि मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। तो मैंने उसको कहा तुम गाड़ी चला के क्या करोगी, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा अल्लाह दे देगा। मैं उस वक्त बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि उसका इतना कॉन्फिडेंस था इस बात में कि अल्लाह दे देगा। मैंने उसको कहा ठीक है माहा, तुम ज़रूर सीखो जाके। तो उसको मैंने क्लासेस दिला दी। महीने बाद वो मेरे पास वापस आई। उसने कहा कि मैंने गाड़ी चलानी सीख ली है, अब आप मुझे लोन दें ताकि मैं वैन ले लूँ और कार सर्विस चलाऊँ। मैंने हंसकर उसको कहा कि तुमने तो कहा था अल्लाह दे देंगे। उसने कहा अल्लाह ही तो देंगे आपके थ्रू, आप वसीला हैं। उसने एक और सबक सिखा दिया मुझे। अब जब भी ऐसा कोई मौका आता है ना, जहाँ मुझे लगता है कि फंड कैसे आएंगे, तो मुझे माँ याद आती है, उसकी बात याद आती है कि मैं क्यों घबरा रही हूँ, अल्लाह दे देंगे। फिर दूसरी बात जब मैं कहती हूँ कि सोचती हूँ कि अल्लाह कैसे देंगे, तो मुझे डोनर याद आ जाते हैं कि वो वसीला जो है वो डोनर भी हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ही देते हैं डोनर्स के थ्रू। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुद ही वसीला बनाते हैं, लोगों के दिल में बात आती है और वो हमारी मदद करते हैं। Kiran is spreading his wings day by day, and it can take as many children as it can, but they need some help. So be a part of it and join. Kiran Foundation is trying to improve the education system, and we are doing more and more about that. Sabima taught us how to fly, and we will teach many others how to fly. By this, we will not change only Karachi, but whole Pakistan through changing the education system. I can't do it alone. I need your help to make a compassionate society.
rather than I speaking about my baby, because I just can't stop speaking about it. If I start from the very beginning, then I'll need hours and hours. It's just like when you speak about your own child, so you just can't stop speaking about it. So when this 10 minutes video is played, then it becomes easier for me to open up the audience for question and answer. So we can start straight up by you asking and me replying. And that's always very interactive. So this, what you see, is basically the conclusion of the 15 years work. However, this video is almost 4 years old. And the children that you're seeing in this video have reached, the boy that was speaking about the sign language is right now in Mixer. The girl who was saying that I want to build a compassionate society, Shirbanu, she's in Cedar College. And the young girl who was saying that I lost my mother, she's in Scepter College. And there's another one, Aksa, jo keh rahi thi ki I want to be the president of Pakistan. She's also in Scepter College. So they've all reached A levels. The other one is Lari, the one that ended, I can't. She's in Habib College. The boy who was speaking about मैं Urdu English सिखा दूंगा is also in Habib College. And all these children have, because of their grades, have secured full scholarships, including Cedar. So, and Cedar College, Cedar School, the management has been so kind to us that they're constantly trying to have more bachche Cedar mein laye, and yeah, even in Cedar School. So they're saying कि आपके लिए बिल्कुल आप लेकर आएं, लेकिन obviously I take my time, because when we take these children for schools like these, mainstream, we have to be very sure that the parent we are giving you is not going to feel outcasted or doesn't feel a misfit. So we have to groom them a lot. And by grooming, what I mean is, because they've lived in such discrepant conditions that it's hard for them to act sometimes seasoned or civilized, which is not their fault at all. They've lived through the tactics of survival. So wo kehte hain na, fittest, survival of the fittest. So we have to, it's been a hard journey to actually change that paradigm. It's I keep telling them that no, the new compassionate society that we are building will not need you to be to believe in survival of the fittest. You should start believing survival of the kindest. So let's start, establishing kindness in a way that it is the biggest gangster, as we say. So there is no bigger gangster than a kind person, because they're the winners at the end of the day. So it takes time. These children, I bring them into the school that I call the Dance, and they're almost 1.5 to 2 years old when they come to me. All these kids came to me when they were 2 years old. And their mothers are admitted along with the children. It's mandatory for the mother to become a student with the child in my school. Child has to come 6 days, mother has to come 5 days. Fathers have to come fortnightly on Sundays. So the entire family comes into the tutelage. After a few months, the dadi, the nani, the puppo, the khala, they all, because you see, they live in family systems. And I think this is something we need to learn from them. Because I think because of some issues or some episodes that have happened in families, we've started condemning joint family system. But a joint family system is actually a support system. And it's a great support system. And in these 20 years of working with younger children, not just in my own organization, my kids went to grammar school and American school. I have 3 children myself. So during those times when my children were, now they're all grown up, they graduate, I volunteered a lot at grammar school and at American school. So I didn't do a job, but I used to go every day. Art. Very good idea about the psychology of a child. Then I went into learning about psychology of a child. And I have seen the difference that children who are raised with grandparents have a higher order thinking. And we are compromising on that beautiful opportunity that we can give to our children so easily being in Pakistan. And even if the kids are living with the grandparents, I think we kind of put the grandparents aside. Not maybe obviously,
but under the table, you know, and the kids grow up believing that maybe she's too dumb, my grandmother or grandpa, my parents are more smarter. It's true that the younger people are smarter, there's no doubt about that. But what wisdom the older people carry, the wisdom is something else, and to be smart is something else. And it's the combination that brings the child up. So if we really want the best for our children, this is one thing that I have learned from this society, is कि ये मजबूरी में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन इस मजबूरी को हम अपना हुस्न बना सकते हैं अगर हम चाहें. So that's why when we brought in the grandparents into the sessions with us, they started seeing change in the house instantly. Initially जब हम सिर्फ माँ बाप को पढ़ाते थे तो grandparents घर में थोड़े नाराज भी होते थे, because obviously we were changing the environment of the house. For instance, हमने ये कह दिया कि अब आप थोड़ा थोड़ा तालीम हासिल कर रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, तो अब घर में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेते हैं. फॉर इंस्टेंस कि जो बहू होती है, जो बीच में जिसकी ना माँ ना बच्चा, मगर जो बहू वो सबको खाना खिलाती है और आखिर में बैठ के खाना खाती है अगर बच जाए तो. अगर वो सिर्फ रस बन जाए तो वो उससे खाना खा लेती है. तो सबसे पहले यहाँ से हम चेंज करें कि बेशक वो सबको खाना डाल के दे, लेकिन आप सब उसका इंतजार. तो ये जब बात घर पे पहुंची तो थोड़ा एतराज भी आया कि ये क्या नई चीजें आप बोल रहे हो, ऐसे कभी, हाँ तो आप ये उनको क्यों बोल रहे हो. तो फिर हमारी मदर्स ने आके कहा कि मैम आप हमारी जो है ना सासों को भी क्लासेस दें. तो पहले तो वो दादी मतलब जिनके घर पहले तो बड़ी रेजिस्टेंस थी, जब मैंने बुलाया तो वो सब आने को भी तैयार नहीं थी. बट देन यू नो हमने बच्चों के थ्रू, क्योंकि वो अपनी पोतियों से बड़े प्यार करती हैं, वो छोटा सा बच्चा जब चलो तो फिर उसको मना नहीं कर सकते. मगर जब वो एक बार आ जाती हैं तो देन इट्स आवर जॉब टू बॉन्ड विद देम एंड टू लेट देम नो दैट वी आर ओनली हियर टू मेक योर लाइफ बेटर. एंड आपको दिमागी सुकून हो जाएगा अगर आप ट्रस्ट करना शुरू कर दें बहू को. मतलब इट्स टाइम फॉर यू टू एंजॉय, आप एंजॉय करें अपनी लाइफ को, यू नो. So it's been a miraculous journey. It's changed me as a person completely. So जब ये कभी कभार मदर्स कहती हैं कि हमारी लाइफ बदल गई है और हमारे बच्चे, मतलब हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और हमारे बच्चे निक्सर में और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कभी कभार तो वो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकती हैं निक्सर और सीडर. इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट में चली गई है हमारी बच्ची, इकरा यूनिवर्सिटी चली गई है. अभी कल हमारी एक बच्ची का एडमिशन जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हो गया. आज सुबह ही आई वेंट फॉर एन एमओयू साइनिंग विद देम. सो दे हैव रीच्ड द यूनिवर्सिटी लेवल. ये जो दो प्रोग्राम्स हैं हमारे अंडर किरण फाउंडेशन मेनली, वैसे तो वी डूइंग अ लॉट ऑफ वेलफेयर आल्सो, राशन एंड दिस एंड दैट, वो चलता रहता है साइड बाय साइड. लेकिन जो मेन काम है हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है DCTOs, एक है किरण स्कूल सिस्टम और दूसरा है किरण एम्बेसडर प्रोग्राम. सो द एम्बेसडर प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन 2006 और उससे पहले 2 साल 2004 से कहानी शुरू एक माँ और एक बच्चे से हुई थी और कोई ऐसी यूनिक बात नहीं थी. हम सबके घरों में लोग काम करते हैं, लेकिन शायद हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर उसकी लाइफ में हम इन्वॉल्व हो जाएं तो वहाँ से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है. तो ये जो खातून थी जो मेरे घर में ऑन एंड ऑफ आती थी काम करने, उसकी बहन मेरे घर में कुक थी. तो वो कभी कभी मेरे पास आ जाया करती थी, कभी किसी मदद के लिए. उसकी शादी जब हुई तो वो पता नहीं था शादी से पहले. फिर उसकी बेटी पैदा हुई, 8 माह की थी, तो उसने उस बच्ची को, मैंने कितनी बार मैं ये कहानी सुना लेकिन हर बार खुशी हो जाता है, लेकिन वो 8 माह की बच्ची को उसने उठा के दीवार से स्मैश कर दिया. तो वो उसकी जो माँ थी वो तो वैसे ही बच्ची के साथ ये किया. तो वो हॉस्पिटल बस में लाकर, उसकी कॉलर बोन भी टूट चुकी थी, उसका शोल्डर डिसलोकेटेड था, उसकी एक रिब में हेयरलाइन फ्रैक्चर था और उसकी एक आंख जो है वो मुझे तो लगा कि जाया हो जाएगी, जिस तरह का उसका मैश का हो गया था. वो बस में उसको लेकर मेरे घर आ गई और जब वो घर में दाखिल हुई बच्ची के साथ तो उसका चेहरा भी ब्लू था. आई एक्चुअली थॉट दैट चाइल्ड इज नॉट अलाइव,
और वो ज़माने में, ये 2004 की मैं बात बता रही हूँ, आई वॉज वॉलंटियरिंग, besides volunteering in my own children's school, I used to go in the evening 3 days in a week to Jinnah Hospital Burn Center. तो वहाँ एफिलिएशन भी थोड़ी थी, और उस पूरे 6 से 7 साल जो मैंने जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न सेंटर में काम किया, आई सॉ अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ अब्यूज। तो एक अंदाजा भी था कि क्या होता है, छोटे बच्चे बिकॉज वीक होते हैं, तो यू ऑलवेज अटैक द वीक पर्सन। तो मैं सीधा फिर जिन्ना हॉस्पिटल ही उसको लेके गई, फौरन से समझ आया तो कल सीवियर चोटें थी। उस वक्त मैंने कुछ भी पूछा उससे कि ये किसने किया है और क्यों किया है, वो बच्ची जो है वहाँ जो फर्स्ट एड वगैरह के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं उसको अपने घर लिया। मैंने कहा कि तुम घर नहीं जाओ जब तक ये ठीक ना हो। During that time I started speaking to her and she told me all about ये है बहुत सारे phenomena हैं, it's important for highly intellectual people like you. So rather than hear this just as a story and forget, I think what I would like to put base light on is to see the phenomena that are happening in our society. These are basically repeated phenomena. ये जो मदर थी, शकीला नाम है इसका, इसने अपनी पसंद की शादी की, तो ये बड़ा वहाँ पे एक रुझान है शादी करने का। और फिर माँ बाप जो है अक्सर 99% ऑफ द टाइम है अगेंस्ट पसंद की शादी। तो when she married this man, उसने simultaneously अपने मैके को नाराज कर दिया था। So that is one reason, because she married with her choice, she was not going back to ask for help from the parents. This is a phenomena that happens. कि अब आप कह रहे हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे माँ बाप को समझाता है। She would have got some help from her parents, but she did not. नहीं पता। और माँ बाप भी कहते थे कि तुम नहीं किया है तो तुम नहीं दो। तो ये मैं रिसर्च करने के लिए बात होता है और उनके साथ ये क्यों होता है। 16-17 साल में वाइफ से गोइंग टू मैरी सो अर्ली मैरिज क्यों करती हैं, क्योंकि कुछ और करने को नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ में। तो ऐसा क्यों होता है बच्चियों के साथ। This was something that was bringing out a curriculum in my head. It was developing into the system in my head. इसके बारे में बात कैसे करें। I can't just go on the road and pick up banners and say कि early marriages ban करो, बच्चों पे abuse ban. It doesn't work like that. Neither was I a doctor, neither was I a psychologist. Why would anybody want to come and talk about the abuse of their husband to me? They don't want to. I have to plan it in a way कि ये obvious ना हो कि we're talking about abuse and the effects of child abuse on the learning of a child, because learning बच्चे की stunt होती है with abuse. जितने aces होंगे बच्चे की लाइफ में, इतनी उसकी learning की speed stunt होती है। And we never come to the point to realize कि अगर इसके ऊपर abuse ना होता तो ये कितना इमोशनली इंटेलिजेंट होता। वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि ऐसा ही है, मगर अगर शायद वो अब्यूज ना होता, स्टिग्मेटाइज ना होता, वर्ड ना होती और इमोशनल अब्यूज से ना गुजरा होता, अभी और ज्यादा इंटेलिजेंट होता, स्मार्ट होता, उसकी लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज्यादा होती, रिस्क टेकिंग की सलाहियत ज्यादा होती है, विशस होता, फियर ना होता। तो ये चीजें हम रियलाइज इसलिए नहीं करते बिकॉज वी डू नॉट कीप दिस कंपैरिजन इन आवर ब्रेन कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। और लड़कियां न्यूली मैरिड या बच्चियां जिनकी शादियां हो जाती हैं छोटी उम्र में, स्पेसिफिकली छोटी उम्र में जब उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई होती, तो दे डोंट हैव द करेज और द विजडम इवन टू टैकल सिचुएशंस लाइक। तो अब ये दोनों बातों पे बात करनी थी कि क्या करें। वो बच्ची मेरे पास रही, फिर कुछ अरसे के बाद मैंने उससे कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, यू वांट टू गो बैक टू दैट मैन। उसने कहा नहीं, हाँ मैं वापस जाना चाहती हूँ, लोग क्या कहेंगे। ना लोग क्या कहेंगे इज अनदर फिनोमेनन, इट इज नॉट समथिंग स्मॉल, इट हैज डिस्ट्रॉयड आवर सोसाइटी। तो लोग क्या कहेंगे हमारे दिमाग में डालता कौन? उस वक्त डालते हैं जब हम छोटे से होते हैं, बेटा सलाम करो वरना आंटी क्या कहेंगे, सीधी होके बैठो वरना लोग क्या कहेंगे, तमीज नहीं। हम बच्चों के साथ शुरू करते हैं, हम बजाय उनको सब वैल्यूज सिखाएं, लेकिन हम इसलिए ना सिखाएं कि लोग क्या कहेंगे, हम इसलिए सिखाएं बिकॉज दैट्स द वे वन शुड बी।
ये ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, हमें ऐसे अच्छे लगते हैं। आप अपने आप को अच्छी लगेंगी अगर आप ऐसे करेंगे, तो हम गाइड करते हैं छोटे बच्चों को, ऑब्वियसली बिकॉज वेरी यंग चिल्ड्रन दे कांट डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, तो हम उनको गाइड करते हैं। तो बहरहाल वो उसने कहा नहीं आई वांट टू ट्राई, मैं वापस जाना चाहती हूँ, वो वापस चली गई उसके पास। ये अटेम्प्टेड सेकंड टाइम, थर्ड फ्लोर से उसने बच्ची को कोशिश की, लेकिन जो उसी के ससुराल के जो 2-4 लोग थे उन्होंने पकड़ के उसको मारा भी कि तुम क्या कर रहे हो बच्ची के साथ। तो at that point when he was throwing her down, he blurted something which is also a phenomena. He said, ये बच्ची मेरी नहीं है। What's that phenomena? Shut. This is also system बिगाड़। कहाँ से ये दिमाग में बात आई और क्या हुआ, और क्या अगर ऐसा आपको शक है तो दिस इज हाउ यू टेक आउट योर वो बच्ची हूबहू अपने बाप की शक्ल थी। तो ही दे कॉट हिम, बहरहाल बचा लिया। ये बहुत डर गई, ये दोबारा मेरे पास वापस आई कि आज ये वाकया हुआ है। मैंने कहा प्लीज मुझे इंटरवीन करने दो, मुझे इजाजत दो कि मैं किसी लॉयर को बीच में लेकर आऊँ, क्योंकि लोग ये कहेंगे। मैंने कहा तुम एक बात, I'll stand with you in this. बहरहाल again she wanted to say नहीं मैं एक और बार ट्राई करूंगी, and she was pregnant with the second. He said बच्चों के बाप तो है ना, जो भी है बाप तो है, मैम आप इसको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में डलवा दें। तो मैंने वो ट्राई किया, विलिंग नहीं था वो, विलिंगनेस के बगैर आप किसी को नहीं ले जा सकते ड्रग रिहैब। मैंने बात की उससे जाके, बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल थर्ड टाइम he attempted again and this time he took the child out अपने साथ, जैसे लेने कुछ पीछे से चीज वीज लेने चलते हैं, and he was trying to sell her off. तो लियारी बहुत एक क्लोज कम्युनिटी है, आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। स्पेसिफिकली एक इलाके के लोग होंगे ना, एक दूसरे को नाम से भी पहचानते हैं, चेहरे से भी पहचानते हैं। तो लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये क्या कर रहा है, मतलब ड्रग के लिए कुछ सौदेबाजी सी फील हुई। तो आदमियों ने, लोगों ने पकड़ के उसको शायद मारा वारा भी और कहा कि क्या, उसको घर तक पहुंचाया। तो ये बात जब मुझे अपने कुक के थ्रू पता चली, जो उसकी सिस्टर है, तो आई वेंट टू हर हाउस। इस पूरे टाइम में 2004 से लेकर 2006 तक, बच्ची 8 माह की थी 2004 में, शी बिकेम 2 years प्लस, और एक और बच्ची भी पैदा हुई दूसरी। इस पूरे टाइम में मेरा लियारी आना जाना बहुत रहा, उसके घर की वजह से, जस्ट फॉर 1 woman and 1 child। और उसके घर आना जाना, उनके पेरेंट्स को समझाना, फिर ये जब मेरे पास आके रुकती थी हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो मैं इसको पढ़ाती थी। इसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो मैंने इसको लिखना पढ़ना सिखाया। बच्ची मुझे माँ कहने लगी, घर पे थी, मुझे भी मम्मा कहती थी, अपनी अम्मी को भी मम्मा कहती थी। तो बहुत क्लोज भी हो गई मुझसे, प्यार सा मेरे बच्चों को उस बच्ची से भी होने लगा, घर में घूमती फिरती थी। इससे आगे आई स्वेयर मैंने इससे आगे सोचा ही नहीं था मैं ये कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं। मुझे बस ये था ये बच्ची, और ये बच्ची जो उसकी माँ भी बच्ची ही थी, 20-21 साल की बच्ची थी, ये इस मुसीबत से निकल जाए। और इसको मैंने इतना वादा किया था कि अगर तुम फैसला करोगी तो तुम मुझे अपने साथ पाओ, और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें तालीम भी दिलाऊं, तुम्हें स्किल भी सिखाऊं। और मैं उस जमाने में आई वॉज प्रोफेशनली अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं अपना क्लिनिक घर से रन करती थी उस जमाने में। आई एम अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आई हैव लेफ्ट दैट जॉब, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years नाउ। मैं किचन में बहुत बिजी रहती हूँ, तो मैंने उसको वही पढ़ाना शुरू कर दिया, about how to take data, how to take measurements, how to थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में गाइडलाइंस, कुछ पकाना सिखा दिया about हाई प्रोटीन डाइट या लो कार्ब डाइट। तो उसको फिर मैंने अपने पास जॉब की। लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ा बात बता दी, पहले हमने उसकी डिवोर्स की तरफ, I asked her just one question। मैंने कहा मैं तुमसे एक सवाल सिर्फ पूछूंगी, उसका तो मुझे फौरन जो जहन में बात आए वही जवाब देना, सोचना नहीं। मैंने कहा कि तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत है? She looked at me and she said no. Then it's done. निकाह is already finished. What is निकाह? वो निकाह ही नहीं है जिसमें मोहब्बत नहीं। It is willingness of the heart that you do your निकाह for. तो फिर तुम ये जिंदगी कैसे इसके साथ गुजारोगे? कहती है मेरा भरोसा टूट गया। मोहब्बत नहीं है, भरोसा टूट गया है। मैं कहा फिर मुझे इजाजत दो। डर रही थी बहुत, निकाह ये मेरे ऊपर वो लग जाएगा, दाग लग जाएगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये बच्चियां यही सुन के बड़ी होंगी माँ तलाकशुदा है। ये सब फिनोमिनास हैं और ये सब हमने क्रिएट किए। इट रियली हर्ट्स मी द
स्कूल बनाना मेरा मकसद कभी भी नहीं था, मेरा मकसद था ये सोचों को बदलना, लेकिन उसके लिए मुझे एक बहाना चाहिए था, कैसे करूँ। सो बहरहाल हमारी बहुत अच्छी दोस्त है ताहिरा हसन, शी इज़ अ लॉयर, शी रन्स द इम्कान फाउंडेशन, अगर आपको पता हो, एनीवन ऑफ यू नो हर, तो जानते हो ताहिरा। सो मैंने ताहिरा को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ये मैं क्या करूँ। शी सेड ये तो पूरा का पूरा यू नो इट्स शी कैन वेरी इजीली गेट अ खुला, तो कोई महर ये, मैंने कहा कुछ भी नहीं दिया है उसने, क्या देना है, सपोर्ट मैं करूँगी, दिस इज माई प्रॉमिस, अंटिल द चिल्ड्रन रीच कॉलेज में सपोर्ट करूँ। बहुत पर्सनल सी चीज थी जो आप में से सब करते होंगे अपने अपने घर में, किसी को नहीं बताते हैं, करते हैं इसी तरह। बहरहाल डिवोर्स उसकी हो गई, करवा दी। उसने डिवोर्स के बाद भी उसको बहुत तंग किया, हमने FIR पे कटवाई, ने उसको तकलीफ पहुंचाने की भी कोशिश की, हर्ट भी करने की, तो फिर FIR बना ली, तो फिर देन स्टेट हुए। जब वो बच्ची, जो बड़ी बच्ची है जिसके साथ अब्यूज हुआ था, साइकोलॉजी हमें बताती है, अगर आप में से सब डायरेक्ट टीचर्स हैं तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजी तो आपने चाहे पढ़ी हो, कि चाहे बच्चे के साथ जुल्म माँ के वूम में भी हो तो भी उसकी मेमोरी होती है। एवरीथिंग गोज इनटू द सॉफ्टवेयर ऑफ योर बच्चे के सॉफ्टवेयर में चला जाता है। तो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, उसको याद नहीं रहता, लेकिन उसकी बिहेवियर जो है वो उसके ऊपर बनता है। सो अगर बचपन में कोई जुल्म हुआ हो बच्चे के साथ तो उसका बिहेवियर पैटर्न उसी तरह बनता है। अब तो मेडिकल साइंस ये भी प्रूव कर रही है कि ऑटिज्म के कुछ ऑटिज्म के जो तरीके हैं, सब ऑटिज्म ऐसा नहीं होता, कुछ जेनेटिक भी होता है, लेकिन कुछ अब्यूज की वजह से होता है। तो अगर बच्चे के साथ बचपन में, जबकि उसको याद भी नहीं है, उसको मारा पीटा ज्यादा गया है, तो उसके अंदर एक वो रॉकिंग आ जाती है, या उसके अंदर एक वो एंजाइटी, हाथ हकलाना, ऑल द स्टैमरिंग, उसको पता भी नहीं होता क्यों आया है। या अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई फोबिया है, हाइट फोबिया है, डार्क फोबिया है, इंसेक्ट फोबिया है, बट यू डोंट रिमेम्बर व्हाई यू हैव दैट फोबिया, it's because something happened to you when you were like 1 year old or 6 months old. It's recorded in your software, so we don't remember it, but our behaviors show that, and through intervention and through processing we can actually get over it. तो ये बहुत बड़ा होप है हमें कि through the right intervention, through the right processing, actually you can get over all your phobias or your mistrust on people. कुछ होता है ना, कुछ लोगों की बाय नेचर ऐसी होती है, पता नहीं क्यों मैं लोगों पे भरोसा नहीं करता जल्दी, या आप कहते हो कि पता नहीं क्यों मुझे शक होता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्यों है, मुझे क्यों दिल चाहता है मैं बार बार हाथ धोऊं, पता नहीं मुझे क्यों ये गंदगी का। So you don't know, you can't decode where it came from, but it's all because of something that happened to you as a little baby or a child, and even in the womb can happen. What something happened to the mother, then it transfers through the womb. It's called the PTSD of the womb. जब माँ पे जुल्म हुआ है, चाहे इमोशनल टर्मोइल, उसका असर बच्चे पर आता है। तो और इसकी रिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दैट्स गुड न्यूज कि इफ यू गो टू द राइट पर्सन एंड यू गो थ्रू इंटरवेंशन। अब मुझे ये बताएं, ये इंटरवेंशन, ये थेरेपी, ये काउंसलिंग, all these fancy words, how many people in our country can afford this? If any one of you have ever gone for a therapy session, 4,000 to 5,000 rupees per session, and you have to constantly go every week, how will our common people ever think about this? And this is the reason that they end up saying ye sab amiron ke chonchle. They're not chonchle, they're really important. Yeah. It's actually we have not taken therapy or counseling. चाहे therapy तो चलो long term होती है, counseling करने से भी फर्क पड़ जाता है, और counseling से भी और नीचे अगर आ जाए तो there is something called a barefoot counselor too. तो barefoot counseling is someone who is a listener for you. ठीक है, और अगर आप बहुत पहले जाएं, अपनी पुरानी वैल्यूज में जाएं, अगर आपके घर में दादा या परदादा वगैरह कोई ऐसा हो, तो ये जो बेयर काउंसलिंग है ना, ये फैमिली का हिस्सा था, हम एक दूसरे को सुनते थे। अब हमारे पास वक्त नहीं है,
बच्चों को सुन पाते हैं, ना हम अपने बड़ों को सुन पाते हैं। तो यही वजह है कि जो दादी घर के अंदर जो कि अभी टेक्नोलॉजी पे एडिक्ट नहीं हुई है, वो देने को टाइम तैयार है छोटे बच्चे को, लेकिन जो बीच में जो माँ या बाप हैं वो रादर देन लेटिंग देम इंटरैक्ट, वो टैबलेट दे के बच्चे को बिठाना ज्यादा पसंद करते हैं कि दादी के पास जाना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसमें it's not a generalized statement that I'm trying to give. It can vary from home to home. When whatever I'm saying right now is the majority, things that are happening there, and I feel that the family unit has suddenly started relying on professionals for everything. बेटा तुमको कुरान पढ़ना है, मदरसे चले जाओ, तुमको तरबियत चाहिए, स्कूल चले जाओ, तुमको लिस्टर चाहिए, थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। बहुत सारी ये चीजें हम खुद क्या करते हैं, हम सोचते थे कि ये तो सब मैं खुद कर सकती हूँ, बच्चों को दे सकती हूँ। तो ये जो डिस्कशन हो गया ना, उसकी वजह से हमने बच्चों को अनसुपरवाइज्ड, अनप्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल और अनसुपरवाइज्ड, तो यही बात है, हमने जालिम लोगों के हाथ में, जिसके दिल में प्यार और मोहब्बत ही नहीं, जिसके दिल में कंपैशन ही नहीं, एहसास जिसको कहते हैं वो नहीं, हमने उनके हमारे बच्चे कर दिए। हम अपनी छोटी सी एक चीज, मैं समझती हूँ कि ज्वेलरी का पीस भी हम अपना किसी करते हैं किसी फ्रेंड को, तो हम उसको इतनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि देखो उसको कोई छोड़ नहीं देना, नग में निकल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा ये ख्याल से रखना। और खासतौर से अगर कोई लापरवाह, उसको हम देते वक्त इतनी इंस्ट्रक्शंस देते अपनी बहन को। छोटा सा बच्चा मॉन्टेसरी में छोड़ के आते हैं, हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बताते कि मेरे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, ऊंची आवाज से डर लगता है, प्लीज बी केयरफुल। तो ये मैं कॉमन पीपल की बात बता रही हूँ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयरएवर आई हैव स्पोकन पीपल कम अप टू मी एंड से नहीं, ये कॉमन लोगों की बात नहीं है, ये लीड्स में भी होता है। सो आई फील के, एंड बहरहाल ये तो एक छोटी मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज दैट इन 2 years टाइम, 2004 से लेकर 2006 तक मैंने रिसर्च की, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और 2007 तक मैंने इब्तदाई स्कूल की बुनियाद डाली। आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ द मदर दैट आई नीड टू एम्पावर, because I know that if my Allah subhanahu wa ta'ala is saying कि मेरा प्यार 70 माओं के बराबर है, तो कोई ना कोई मेटाफोर में बात तो है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरा प्यार टीचर के बराबर है, या मेरा प्यार बाप के बराबर है, या भाई के बराबर है, या नानी के बराबर है, तो कुछ तो बात है। आई नीड टू डिकोड दिस, हैज टू बी सम साइंटिफिक थिंग इन इट। तो मैंने फिर माओं को उठाया, और बच्चों के साथ एडमिशन के साथ माओं को हमने मैंडेटरी किया। कैसे बुलाया? ऑब्वियसली जो मैंने वहाँ देखा कि जो उनकी नीड्स हैं, पहले तो वेट ही वो डालना पड़ता है, बिकॉज दे डिडंट नो मी, आई वाज कमिंग फ्रॉम एन आउटसाइड प्लेस। वो उस जमाने में पूरा लियारी वाज अंडर वॉर, गैंग वॉर्स चल रही थी। मुझे गाड़ी जो है वो लियारी के बाहर खड़ी करनी पड़ती थी, आगा खान स्कूल है वहाँ खारदर पे, मैं उसके भी बाहर गाड़ी खड़ी करती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉक डाउन, बुर्का पहन के मैं ऊपर नीचे वॉक डाउन करती थी, जगह जगह बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करती थी। 2 साल मैंने यही किया, कभी किसी स्कूल के बेंच के बाहर बैठ गई, कभी किसी ढाबे के पास बैठ गई, कभी फुटपाथ पे बैठ गई। तो लोग समझते होंगे कोई फकीर नहीं है या जो भी, आई वाज राइटिंग। तो उस 2 सालों में मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी, अनदर फिनोमेना, आई होप आई एम नॉट बोरिंग। एक और फिनोमेना मैंने देखा कि मैंने नोटिस किया कि, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, नॉट one street dog did I see that was not injured. किसी का कान नहीं था, किसी की दुम आती थी, कोई लंगड़ा रहा था, किसी की आंख पे जख्म था। and I'm noticing focus कि मुझे कोई एक ऐसा स्ट्रीट डॉग मिल जाए जो साबुत हो। पपीज मिलते थे जो साबुत थे, बट मैं सोचने लगी कि ये क्या है, who is doing this? I need to find the culprit. क्या ये डॉग्स आपस में लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? एंड देन आई स्टार्टेड सिटिंग एंड आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड मी कि मैं कभी कैच कर दूं लाइव कि ये डॉग कुत्तों के साथ कौन रहता है। एंड दैट डे आई नेवर फॉरगेट दैट डे इन माय लाइफ। ये 2005 की बात है। आई वाज सिटिंग ऑन द फुटपाथ, राइट एट द फुटपाथ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल दैट आई हैव अडॉप्टेड नाउ,
and there's a set of young boys 6 years old 8 years old छोटे बड़े साइज के, तो वो पत्थर मार रहे थे और वो जैसे ये जो होते हैं स्ट्रीट डॉग बेसिकली बायोलॉजिकली दे आर विशियस एनिमल्स, दे आर नॉट डरे हुए एनिमल्स, एक बाय नेचर इज विशियस, लेकिन जब वो उसको मारते थे तो वो दुम उसकी टांगों के बीच में चली जाती थी, आओ 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 जैसे ना, डरता था बच्चों से। तो मैं उनके पास, मैं फुटपाथ पे बैठी हुई थी, मैंने बच्चों को, मैं टॉफीज अक्सर अपनी जेब में रख के चलती थी, मैंने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया, एक आके बैठा, फिर दूसरा आके बैठा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप, मजा आ रहा है, हाँ हम खेल रहे हैं, अब वर्ड आप सुने, खेल रहे हैं, प्ले, व्हाट इज प्ले, प्ले स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड इज रियली यंग, सो हम कहते हैं प्ले थेरेपी, तो अगर खेल का उनका नजरिया ही यही है कि हम खेल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि उसको दर्द होता होगा, तो दूसरे बच्चा कहता है कि ना जानवरों को दर्द नहीं होता, मैंने हाँ जानवरों को क्यों दर्द नहीं होता, उसने कहा जानवरों को दर्द होता तो फिर भी जब हम बकरे काटते हैं तो उनको तो दर्द नहीं होता, वो तो जन्नत में जाते हैं, लॉजिक है, फिनोमेना है, बकरा ईद जैसा कॉन्सेप्ट ये इतना एडल्ट कॉन्सेप्ट है, ये आप नबी पाक की पूरी जो उनका टाइम था तबलीग का खोल के देख लें कि क्या कभी कोई बकरा बच्चों के सामने बैठा, ये शहर से दूर इलाकों में होता है, ये कॉन्सेप्ट ही एडल्ट है, हमने बच्चों को कुर्बानी का कॉन्सेप्ट गले काट के नहीं सिखाना, इतने इतने से बच्चों को छुरियां हाथ में देके कहते हैं कि आप काटो, और उसके ऊपर उस बकरे को या उस गाय को लाकर पहले पालते, वो बच्चा रोजाना उसको वॉक पे लेकर जाता है गलियों में, उसको घास खिलाता है, उससे प्यार करता है, और जिस दिन वो कटता है तो उसको हम मैनिपुलेट करते हैं कि बिल्कुल दुख मत करना, इसको बिल्कुल दर्द नहीं होता, ये जन्नत में जाएगा, तो वो एक तो वो फॉर्मूला फिर हर चीज कि पहले प्यार करो, यानी यू कैन कट द थिंग और द ह्यूमन और द एनिमल दैट यू लव अ लॉट एंड हैव नो रिमोर्स फॉर इट बिकॉज उसको दर्द नहीं होता, इट्स अ फॉर्मूला एंड वी हैव बिकम अ नेशन ऑफ no compassion because of all these unmindful things that we do. So obviously I believe in the qurbani, but I don't believe in the qurbani happening on the roads and in the streets and giving doing it in front of the kids. बहरहाल उसने ये बात बोली और फिर उसके बाद दूसरा बच्चा भागता हुआ आता है, वो कहता है और गाना गा रहा था, मुझे आज ही याद है, डांस करता हुआ, कुत्ते को मारना सवाब है, कुत्ते को मारना सवाब है। अब ये एक और होगी, बहरहाल वो मैंने सिर्फ लिखा, वो तो टाइम मेरा कुछ समझाने का था नहीं, आई वाज जस्ट कलेक्टिंग डाटा, बट आई मेड ऑल दीज माय ऑब्जर्वेशंस पार्ट ऑफ माय करिकुलम। सो एक साल लगा के मैंने करिकुलम डिजाइन किया और उस दौरान मैंने कुछ दूसरी जगहों से ऑनलाइन सीखा, लोगों से सुना, मैंने ट्रैवल बहुत किया, जाके देखा कि कहाँ कहाँ जो अब्यूज से बच्चे गुजरते हैं, वॉर जोन से गुजरते हैं, तो उनके लिए दूसरे मुल्कों ने क्या किया है। तो आई फाउंड द ट्रॉमा सेंसिटिव स्कूल सिस्टम्स इन यूके, they're based on the philosophy of trauma, effects of trauma. All the staff, starting from the drivers or the gatekeepers till the principal and organizers, are trained to understand trauma. Classrooms are trauma informed. Activities are trauma informed. तो मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज इन लोगों ने की है। However, I wanted to innovate it or improvise it according to my culture. Because UK से कोई चीज उठा के लाके फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर। It doesn't work that way. मुझे पता है कि जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ वहाँ staunch religious belief system है। Patriarchy is known as shan. एक औरत ने मुझे कहा, उसको मतलब हमारी माँ थी तो उसके चेहरे पे निशान था, यहाँ पे खून का निशान था, तो मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें, तो उसने कहा मियाँ ने मारा है, उसने मुझे ऐसे मियाँ ने मारा है, मैंने कहा हाँ बैठो मेरे साथ बताओ मुझे, कहता है क्या हो गया मैम, ये तो हमारी शान है। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, बिकॉज फॉर मी दैट वाज द टाइम टू जस्ट राइट, ऑब्जर्व राइट अगेन द फिनोमेना कि ये मेरा मर्द है, तो और ये चीज हम
फीड करते हैं अपने बेटों को कि तुम कैसे मर्द हो अगर तुम कंट्रोल नहीं करना जानते या तुम बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये शायद हमारी क्रिएट की हुई दुनिया है जिसको हमें रिवर्स करना है। वी हैव टू टर्न इट अराउंड, वी हैव टू restore the belief on love, because that is why we were created in this world, to love Allah Ta'ala. Allah Ta'ala is nothing else but, or whoever the creator, we may call him Allah Ta'ala, we may call him whatever, लेकिन उन्होंने हमें मोहब्बत करनी सिखाई है एक दूसरे से। बट हमारा मुल्क तशद्दुद और जुल्म और बेएहसासी का शिकार है। तो बस फिर वो इब्तदाई प्रोग्राम मैंने लिखा और 20 बच्चों से मैंने शुरुआत की, और उसमें से 20 बच्चों में से जो पहला बच्चा था वो मेरी वो बच्ची थी 8 माह की, जो जिसको दीवार से दे मारा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, टुडे शी इज इन हबीब कॉलेज, एस फ्लायर, सो कॉन्फिडेंट। वो इस मूवी में नहीं है, पता नहीं इस वीडियो के अंदर वो शायद अनवेल थी या क्या, मगर आई हैव हर पिक्चर्स विद मी, एंड शी हैज बिकम टू दिस पॉइंट दैट शी इज नाउ स्पीक्स अबाउट हर लाइफ। तो मैंने कभी किसी बच्चों को पुश नहीं किया कि बेटा जब भी आप रेडी हो, whenever you feel that you're ready to share your life, then do it. If you don't want to share your life, nobody will ask you to share your life. You've come out of it, you've healed from ये सारे बच्चे जो आपने देखे, ये सब traumatized बच्चे। फिर another phenomena, big phenomena was रहमान लियारी का सबसे बड़ा कैंसर बैट्समैन बच्चे। यहाँ बहुत गर्दन, he's from there, he just told me कि मैं जानता हूँ आपको। रहमान डकैत पे किसी ने कोई लाइव डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं बनाई। अभी तो कहीं और कोई ऐसा होता है तो उस पर स्टोरी बन जाती है। तो हम सिर्फ उसके बारे में ना लोगों से जान सकते हैं, जो उसके पड़ोस, घर, या उसके जो लोग थे या वही इलाके के लोगों से। तो मैंने बड़े सवालात लोगों से किए कि ये इतना जालिम आदमी है कि कत्ल करने से पहले सोचता नहीं है, तो उसका बचपन कैसा था जी, उसका बचपन कैसा था। तो उन्होंने मुझे सबने बताया, और मेरी मस्ती नोई थी कि उसने पहला कत्ल 12 साल की उम्र में किया था। और पता है किसका किया था? अपनी माँ का। नहीं, सोचने की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट रिश्ता है, जब आप उसको और स्टैब किए, जब तकलीफ या मार सकते हैं, तो फिर दूसरा कोई रिश्ता तो कोई मायने रखता है। इसके बाद तो सब चीजें आसान हो गई ना। आपने तो सबसे बड़ा जंप शुरू में ही लगा लिया 12 साल में, लेकिन उस बच्चे को इस नौबत पे पहुंचाने में किसका हाथ? सोसाइटी का हाथ है। और मैं सोचती हूँ कि अगर रहमान मुझे 2.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में मिल जाता और उसकी माँ भी मेरे इब्तदाई स्कूल का हिस्सा होती, तो आज रहमान भी सीधे में पढ़ा होता। तो दिस मेक्स मी थिंक कि जो बच्चे इस वक्त मेरे पास हैं, क्या उनमें से कोई बन जाता है रहमान जैसा अगर किरण ना आता? It's very important for me to keep this comparison in mind, because that gives me motivation, that gives me that the thought to actually pat yourself on the back. You know, my teachers sometimes get very frustrated. बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। I have to tell them that you have no idea what you have saved. Keep this always in mind, that if रहमान would have been with us, 2000 कत्ल ना होते। और क्या मालूम कौन सा बच्चा जो है वो बच गया है। तो हमेशा अपने आप को क्रेडिट दो, अपने आप को पैच करो। You're doing a big work, and it's not just teaching that you're doing, you're part of a mission, you're part of a cause. तो फिर वो याद इसे हाँ वो बात तो है। बहरहाल वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 2006 में 7 में इब्तदाई स्कूल बना। मेरे पास जगह नहीं थी, वॉर जोन थी वो जगह, वहाँ कोई मुझे जगह देने को तैयार नहीं था। मुझे फॉलो करते थे लोग, मेरे ऊपर 4 बार अटैक हुआ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर तक तो ट्रस्ट हो गया था लोगों को मुझ पर, लेकिन शुरू में उनको यही था कि ये कोई अमेरिका की एजेंट हैं, ये अंग्रेजी बोलती हैं तो ये यूं होंगी, या ये यूनिफॉर्म इन्होंने जो है वो शॉर्ट्स क्यों बनाए हैं, बच्चे थे ना छोटे छोटे लड़के थे, तो ये फ्रॉक्स क्यों पहनाती हैं, तो ये बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखाती हैं। तो ये चीज़ों ने एक थोड़ी सी ना उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। तो मुझे बहुत फील होता था जब मैं वॉक करती थी, मुझे लगता था कि मुझे फॉलो कर रहा है। तो व्हेन आई वुड टर्न अराउंड एंड सी, तो मुझे लगता था 5-6 आदमियों ने टर्न अराउंड कर लिया, तो कुछ तो हो रहा है। फिर अटैक भी हुआ, 4 बार हुआ अलग अलग तरीकों से, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने काफ़ी अहम किया, बचत हो गई।
बहरहाल वो भी एक लर्निंग थी मेरे लिए बहुत बड़ी। लेकिन मेरे पास क्योंकि जगह नहीं थी, हमने मस्जिद के इमाम ने मुझे 2 कमरे दिए थे और वहाँ के 2 ऐसे अफराद थे, उनका नाम है हाजी नज़ीर बलोच और सोहराब बलोच, दोनों बलोच थे और वो दोनों ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की बिकॉज वो इनडायरेक्टली मैं उनको इसलिए जानती थी, वो मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री पे काम करते, यारी जैसे लोग काम करते हैं, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, उनकी वजह से मैं एंटर हो पाई यारी। और उन्होंने मस्जिद से कह के मुझे 2 कमरे, मस्जिद के कमरे थे, हम मस्जिद को रेंट देते थे, 2 छोटे छोटे शैबी से कमरे थे। वहाँ पे हमने इब्तदाई स्कूल शुरू किया, 20 माएँ 20 बच्चे, और घर घर जाके मैंने तलाश किए वो बच्चे जिनके साथ कोई एक केसेस हो, सो यानी ब्रोकन फैमिली हो या जुल्म हुआ हो या कोई ड्रग में पेरेंट रहा हो, समथिंग दैट, बिकॉज मेरा प्रोग्राम भी वाज ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल सिस्टम, राइट। तो वो मुझे 20 बच्चे मिले, 20 से मैंने शुरू किया, और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी स्कूल की, और दूसरा मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैंने गैप को रिड्यूस करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड अ स्कूल फॉर like so many other schools that are being built. I'm going to make them, I shouldn't say good enough, that's a wrong word, groomed enough to be able to get admission in the same level of schools where my own kids have studied. तो अल्लाह ने कहा है जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा दूसरे के लिए पसंद करो, तो मैं इस वक्त एक और गरीबों का स्कूल नहीं बनाऊंगी कि ये गरीब इधर पढ़ो अमीर इधर पढ़ो, ये गरीब के शादी हॉल या अमीर का शादी हॉल, ये गरीब का पार्क या अमीर का पार्क। सो यू नो हर चीज में ये डिफ्रेंसिएशन है, तो ये सैलून गरीब का तो ये सैलून अमीर का, तो ऐसे ब्रिज कैसे करें हम गैप को। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल छोटी उम्र के, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, अमीर के भी और गरीब के भी, वो एक ही जुबान जानते हैं, दैट इज लव एंड फ्रेंडशिप। तो मुझे लगा कि इस उम्र में अगर मैं इनको मिला दूं, जब वो 4 साल के हैं, तो वो एक दूसरे को जज नहीं कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली एलीट के बच्चे जज नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज 4 साल का बच्चा बच्चा होता है, उसको नहीं, हाँ, he just wants to have a good friend। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैंने इनको किंडरगार्टन में ही दाखिला दिला देना है इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल। तो 2 साल मैक्सिमम मैंने उनको अपने पास इब्तदाई स्कूल में रखा, माँ को ग्रूम किया, बाप को चलना वॉक करना, कपड़े ये वो जो भी, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, अंग्रेजी बोलना सिखाई। तो जिसको लिखना भी नहीं आता था वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। किसी को गाड़ी चलाने का शौक था, उसने गाड़ी चलानी सीखी, किसी को बिजनेस करना था उसको सीट मनी देके उसको बिजनेस करने दिया, सिंगल मदर स्पेशली। और फिर जो है ना 2007 चिल्ड्रन स्टार्टेड ब्लैक, it was a इम्तिहान फॉर मी कि करता है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। द फर्स्ट kid who got into St. Michael School was Lisa, ये अच्छा असाइनमेंट की बात कर रहा था, जो कह रहे थे मुझे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट जाना है, तो ही इज टुडे इन निक्सन माशाल्लाह। तो उसका सेंट माइकल में एडमिशन हो गया। उस जमाने में मिसेस नैयर हुआ करती थी सेंट माइकल स्कूल में, उन्होंने मुझे बुलाया कि ये आपका नाम ले रहे हैं इंटरव्यू में और ये लियारी से आए हैं और इन्होंने कहा है कि मैं आपसे बात करूं, योर बिहाइंड। मैंने कहा मेरा नाम लिख लें, सरोगेट मदर, कुछ भी हो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल पूछे कि लुक आई वुड लव टू डू दिस, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन दूसरे पेरेंट्स ना एतराज़ करें, लियारी से बच्चा आ रहा है तो कहीं ऐसे तो नहीं कि वो कोई लैंग्वेज बुरी लेकर आएगा, कहीं ऐसे तो नहीं कि सर में जुए होंगे, कहीं ऐसे, ये चीज़ें फिर दूसरे बच्चे नोट करते हैं और फिर पेरेंट्स एतराज़ करते हैं। मैंने कहा इस सब चीज़ों की गारंटी मैं देती हूँ आपको, आप मेरा नाम सरोगेट मदर की तरह लिखते हैं। तो हर फॉर्म में मेरा नाम था, 20 बच्चे जुड़ गए। And in the same year, Mrs. Nair just became like part of the family. She just was blown away by his values and the combination of humility and जिस तरह वो बचा के हर चीज करता था, पेंसिल को आखिरी तक इस्तेमाल करता था, सादगी से जाता था, लेकिन flyer A till O-levels. That's why he got into this on full scholarship. तो वहां से लेकर अब तक 20 बच्चे हर साल इस सिलसिला अभी तक चल रहा है, and we have almost 145 children who are enjoying mainstream schooling from Haq Academy to Learning Tree to Generation Reflection, Habib schools, DHA schools, St. Michael, ये सारी schools में बच्चे जाते हैं। Haq Academy, Learning Tree have been so kind, they have not taken fee from us. उन्होंने कहा it's an honor for us that you're giving us a child. तो वहाँ बिल्कुल फ्री हो गया, रिफ्लेक्शन ऑल फ्री, माइकल में 50%, मतलब they started coming forward themselves
पहला साल मुझे लगा कि मुझे उनकी फुल फी देनी पड़ी, बट मैंने बच्चों को भी कहा कि बेटा नाउ इट्स यू हैव ओपन द डोर्स फॉर सो मेनी मोर चिल्ड्रन, तो अगर इफ यू डू वेल इन स्कूल the other children will get a chance to, and if you don't do well in school then the doors will close. तो ये फर्स्ट बच्चे जो हमारे इसमें आप देख रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट बैच है, उनको बड़ा प्रेशर था। हैप्पी होम स्कूल्स में गजाला हैं जो बहुत ही, यानी आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह wherever we have partnered I have found such open people to take my children, and I feel so blessed. Subha bhi I was in Ziauddin, and she was like, of course, why not, you know, our student has gotten into the DPT program, एक लॉ प्रोग्राम में चला गया बच्चा Ziauddin में। इंडस वैली में जब बच्ची का हुआ एडमिशन तो उन्होंने भी कहा 75% उन्होंने स्कॉलरशिप दी, 25 का गैप पूरा। सिर्फ फी नहीं होती, हमें ट्रांसपोर्ट, इंडस वैली जो बच्ची गई है उसके तो आर्ट सप्लाईज का भी एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, मगर उसकी लाइफ चेंज हो रही है वहां से बिल्कुल। उस बच्ची की, वो बच्ची यानी पैरालाइज हुआ है, उसका फादर, माँ नहीं है उसकी, यानी अगर उसकी लाइफ अगर आप देखें, और अब वो इंडस में जो जाती है क्या हो गई है, यू नो, सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी देम लाइक दैट। तो 8 years डाउन द लाइन 2014 में आई टुक द लीप, बहुत डर के ठीक है अब 2 कमरों से निकल के लेट्स डू समथिंग बिगर। ये प्रोग्राम बन चुका है, इसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड छोटे बेबीज के लिए। कैन वी टेक द ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल सिस्टम एंड अप्लाई इट ऑन एन एंटायर स्कूल? दैट्स ट्रिकी, क्योंकि एडोलेसेंस बच्चों के साथ एक you have to have a separate type of intervention with them. तो हमने गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट की वहाँ पे, जो कि ये बता रहे थे, वो गवर्नमेंट स्कूल DCTO नाम है स्कूल का, वो गैंगस्टर्स के कब्जे में थी, और उसकी एक बिल्डिंग जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वहाँ हॉस्टेजेस रखे जाते थे। तो जब हमने अडॉप्ट की और जब हम उसके अंदर गए इसकी सफाइयाँ करवाने, तो हमें जो चीज़ें मिली हैं वहाँ से वो इतनी इयरिंग है बताना आपको, इट वाज लाइक कि हमें लग रहा था कि हम शायद you know we're in a torture cell type, जिस तरह you know Guantanamo Bay के remnants अगर हों तो आप देखें तो you know रस्सियाँ लटकी हुई हैं, पंखों से दीवार में खून लगा हुआ है, औजार मिल पड़े हुए हैं, बुलेट्स छोटे छोटे जगह जगह पड़े हुए हैं। तो वो गैंग्स के कब्जे में था वो स्कूल, और उसकी एक बिल्डिंग छोटी सी जो कोने में थी उसके गिर्द उन्होंने दीवार बना दी थी, वहाँ बच्चे लड़के पढ़ते थे, वो बॉयज, और वो लड़के भी जाहिर है क्योंकि उस इलाके में पढ़ते थे तो वो इम्प्रेस्ड हैं गैंग्स से, भाई लोग कहते हैं उसको। वो कहते हैं भाई लोग। अब जैसे ही बच्चा 15-16 साल का होता है तो वो भी अपनी कॉलर पीछे कर कहता है मैं भाई लोग हूँ, तो गन घुमाते हैं, यू नो, तो इट्स लाइक जी खिलौने में भी गन्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके लिए एक प्राइड सी हो जाती है। नाउ टू चेंज दैट पैराडाइम, वो उधर लड़के ऑलरेडी थे, 120 बॉयज थे बड़े बड़े। तो आई रिमेम्बर जब आई वॉकड इन फर्स्ट टाइम 2014 में आफ्टर अडॉप्टिंग द स्कूल फ्रॉम SCF, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, तो एक लड़का है बड़ा सा, ही वाज टॉल लाइक यू नो, मेरे पास आता है, बटन मेरे सामने खोलता है और पीछे करके कहता है क्या चाहिए, लाइक क्या चाहिए। तो मैंने इसके सामने मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा उसको, मैं आगे बढ़ गई। तो मुझे देखता रहा, आई फेल्ट, एंड द सेम बॉय विदिन 3 to 4 months, ये पूरी मैट्रिक के बच्चे थे सारे, जिनको मैंने अपना कॉमरेड्स, मैंने कहा आप लोग मेरे कॉमरेड्स हैं, कि मैं ये स्कूल में आ रही हूँ चीज़ों को बदलने, लेकिन मैं आपके साथ के बगैर नहीं बदल सकती। सो यू गोना बी माय फर्स्ट टीम, माय मैजिक टीम, माय कॉमरेड्स, हु गोना हेल्प मी टू चेंज द सिस्टम। तो एक से एक सारे वो थे लड़के बिगड़ चुके थे, ड्रग्स में थे, पोर्नोग्राफी में थे, सब ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। मतलब वो जो कथारसिस होता था ना उनके साथ 2-2 घंटे बैठ के बड़े बड़े लड़कों के साथ, तो ऐसे सर रख के ना विदिन 3 months तो एक बच्चा टूट रहा था मेरे सामने, रोता था, अपने हालात बताता था जिंदगी के। बिकॉज उनकी नज़र में देखिए ये भी एक फिनोमेना है कि अच्छा कि हमारी जो चॉइसेस है ना ऑफ आइडियल्स ऑफ हीरोज, वो डिफरेंट है फ्रॉम मे बी यू एंड मी। वहाँ के बच्चों के आइडियल्स और हीरोज जो है ना वो होते हैं जो जुल्म करते हैं, कहते हैं ये होता है मर्द, यू नो। तो हाँ, पावर टू कंट्रोल, बिल्कुल सही लफ्ज बोला आपने। तो वो चीज फिर वो अपने फादर में भी जब देखते हैं बोलते हैं ये है फादर। तो बेटा जब 16 साल का होता है अपनी माँ को मारना शुरू करता है, मतलब उसका हाथ उठाना उसके लिए कोई चीज नहीं है, बिकॉज वो इंकरेज किया जाता है। तो उस इलाके के सबसे बड़े हीरो गैंगस्टर्स थे। तो
हर वो चीज जो वो करते थे वो इस यंग जनरेशन को करना होता था। टिपिकल वे ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स था उनका, या टोपी पहनने का खास तरीका था। बस 14-15 साल के लड़के हो जाएं तो वो उसी स्टाइल की टोपी पहनना शुरू, और वही स्टाइल से चलना, वही चीज आपको नजर आती थी। तो ये वो बच्चे थे सारे जो इस स्कूल में बस आते थे सुबह ऐसे खाना पूरी के लिए, जिसको कहते हैं बस टाइम वेस्ट करना, आते थे दीवार से छलांग मार के 11 बजे निकल जाते थे। लेकिन फिर जब मैंने उनको बुलाना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा आते थे मुंह बना बना के, लेकिन वी स्पोक अबाउट नथिंग, नो एकेडमिक्स। पहला साल को मैंने नाम दिया था हीलिंग ईयर, जो मैंने करिकुलम बनाया था वो हीलिंग ईयर के हिसाब से बनाया, वी हैव टू हील दिस चिल्ड्रन। फायदा ही नहीं, हम रोटेशन में घूमते रहेंगे। 9th ग्रेड के बच्चे को मैंने कहा था, राइटिंग सैंपल्स दिए थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको मैंने कहा था लिखिए मैं पाकिस्तानी हूँ। 9th ग्रेड में आप कैसे पहुंचे? आप एग्जाम अभी कैसे देंगे? मतलब 10 रुपए का पेपर मिलता है, देख देख के तो हम उतार सकते हैं, तो मसला ही नहीं, हम तो A ग्रेड ले आएंगे। तो उनका कसूर नहीं है, ये सारे हमारी सोसाइटी का कसूर है, जिन्होंने ये इनको बनाया है इन बच्चों को। अभी हम बात कर रहे हैं इनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, कल्चर भी नहीं है, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और टीचर्स हम ये इश्यूज फेस करते हैं यहाँ पर, एंड वी डू नो ये बच्चा कहाँ से उठ के आया है, जहाँ तो वो सबसे बड़ी गाड़ी में रहा है, सारे ब्रांडेड है, तो चीजें पहना रहा है, बट वो कल्चर, वो तहजीब, वो तौर तरीके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम कहेंगे जी माँ बाप ने नहीं सिखाया, माँ बाप कहेंगे हम स्कूल में नहीं सिखाया, तो where do we draw the line? मैंने भी, मुझे भी ये जरूर आता था ख्याल दिल में कि माँ बाप क्यों नहीं कुछ कर रहे, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ दें, ब्लेम गेम से फायदा क्या, लेट्स डेवलप अ स्कूल सिस्टम वेयर पेरेंट्स एजुकेशन इज मैनेज्ड। आप दाखला ले ही नहीं सकते हमारे स्कूल में, और वो हमारे स्कूल में दाखला लेने क्यों आते थे? बिकॉज फ्री स्नैक मिल रहा है, फ्री लंचेस मिल रहे हैं, बच्चों को खेलने की चीजें मिल रही हैं, मंथली राशन मिल रहा है, जो भी उनकी नीड थी वो नीड भी हम साथ पूरी कर रहे थे ताकि वो आए। ये मुझे सिर्फ 2 साल करना पड़ा। 2 साल के बाद they didn't want any material thing from me. They were in awe of the change that was happening in their homes. उन लोगों ने बल्कि मेरे जो सबसे प्रेशियस डोनर्स कौन है? यही माँ बाप। ये जब उनके पास कोई 50-100 रुपए या 1000 रुपए ज्यादा होते हैं ना, आके डोनेट करके जाते हैं कि हम डोनर बनना चाहते हैं। मैंने कहा बने या तो वो डोनेट करते हैं, उनके लिए वो 50 रुपीज हमारे 5 लाख के बराबर है कि मतलब जो भी आमदनी है 10-15 हजार में से वो अगर मुझे दे जाते हैं 200 रुपए, तो उनको वही स्लिप मिलती है रसीद जो हमारे डोनर को मिलती है। सो दे आर द गिवर्स, वो दे बिकम द डोनर्स। उनके बच्चों को कोई और सपोर्ट कर रहा है और वो आके अपनी इस्तात के मुताबिक डोनेट करके जाते हैं। तो इतना चेंज हो गया है सब कुछ कि आई लाइक उन्होंने मुझे बदल दिया बिल्कुल। वो जब मुझे कहती है हमारी जिंदगी बदल गई, मैंने कहा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या। And I'm not saying this out of any humility. I'm telling you the truth because I lived in that society. I'm still living in that society जहाँ हम अपना टाइम कॉफी पार्टी से वेस्ट करते। मैं भी थी, I was there, was part of that crowd. So they, and when I tell them, वो समझती हैं शायद मैं उनको खुश करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बचा लिया है। You've given me a cause, and in all this journey, my children who were in that time grammar में O levels में, एक बेटी मेरी O levels कर रही थी, उसमें एक बेटा मेरा 8th में था, बड़ा बेटा मेरा अमेरिकन स्कूल में था उस वक्त, he was in the 12th grade or something. सबने किरण ज्वाइन कर लिया। What else do I want? What more do I want? They're all serving the Lyari now, अपने अपने तरीके से। My daughter is a psychologist. She set up the entire mental health department. उसने मेरे इस कैंडिडेट स्कूल सिस्टम को स्ट्रक्चर दिया। देखा मम्मा, you've done a great job, but you know what? Evidence based proof इसके साथ अटैच करें, इसके साथ रिसर्च अटैच करें, इसको एक स्ट्रक्चर दें ताकि इसकी ट्रेनिंग बने, so that you can start training other schools for it. मैंने कहा बेटा मुझे ये सब कुछ नहीं आता, I'm like a simple person, आप करके दो। So she picked up the whole 10 years of work
and she got down computer लेकर अपनी किताबें लेकर and she started structuring. In 4 years time she structured. हाँ ठीक है. So sorry. Thank you so much.